کہ حق بولنے سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں، چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں. بہت سے ایسے عالم دین ہیں اور بہت سے ایسے شعرا ہیں کہ نبی کی نعت پڑھنی چاہیے جس انداز میں، وہ انداز نہیں ہوتا بلکہ گانے کے طرز بنات ہوتے. بتائیے یہ قوم کو کیا سبق دیتے ہو تم؟ ہماری قوم کے بعد علماء تقریروں کے لیے باقاعدہ اچھا خاصا رقم وصول کرتے ہیں، نعت پڑھنے کے لیے اچھا خاصا رقم وصول کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی شان میں کوئی آوارہ کتا بھونکتا ہے، کوئی جنگلی بھیڑیا بھونکتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو یہ پیشہ ور مقرر اور یہ پیشہ ور شاعر کہاں مر جاتے ہیں؟ پھر ان کی آوازیں کیوں نہیں بلند ہوتی ہیں اس گستاخی میں؟ بتائیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تم نبی کے نام پہ صرف پیسہ کمانا جانتے ہو؟ جس نبی کے نام سے پیسہ کماتے ہو اسی نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو کیوں نہیں بولتے؟ سب کی ذمہ داری ہے. نہیں تو پھر یاد رکھو کہ میدان محشر میں منہ دکھانا پڑے گا. یاد رکھو خدا کے سامنے بھی جانا ہے، رسول کے سامنے بھی جانا ہے. کیا منہ تم لے کر کے جاؤ گے؟ یہاں تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نائب رسول ہیں. ارے نائب رسول کا کام کیا ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے. نائب رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پیسہ کما لو نبی کے نام پہ اور کوئی گستاخی کرے تو چھپ کر کے دل میں چھپ جاؤ جا کر کے خاموشی سے. یہ نائب رسول کا کام نہیں ہے، بلکہ حق بات بولو، حق کے لیے جان دے دو. یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو. جبکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب سے دیکھا ہے تمہیں لباس بشری میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسا ہو جائے. یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ نبی کی امت میں پیدا ہوئے. اس شاعر نے کیا کہا؟ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، مجھ کو جو ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے. ارے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ شان ہے امت محمدیہ کی. آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے. ہمارا جو کام ہے اس طریقے پہ ہمیں چاہے کہ ہم عمل کریں، نبی کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائیں. اگر کوئی خلاف ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جو حق ہے ہمیشہ حق بیانی ہونی چاہیے. ہمارے نبی نے کیا ناچ گانا عام کرنے کے لیے نبی حکم دیے ہیں؟ آپ کہیں بھی روایت اٹھا کر کے دکھا دیجیے. میرے آقا نے ان چیزوں کو منع فرمایا، ناجائز و حرام ہے. آج شادیاں ہوتی ہیں، ہر جگہ میں ڈھول بجایا جاتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، لوگ ناچتے ہیں. پھر اس کے بعد بارات نکلتی ہے تو ڈھول بجاتے ہیں مسجد میں. کتنے بے غیرت ہو گئے مسلمان کہ مسجد کے دروازے پہ جا کے ڈھول بجاتے ہیں. ارے مسجد بنائی گئی کس لیے؟ عبادت کے لیے بنائی گئی، ڈھول بجانے کے لیے نہیں بنائی گئی. ولیمہ ہوتا ہے اس میں بھی ڈھول بجایا جاتا ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں، آج ایک جاہلانہ رسم جسے جوتا چرانے کا رسم کہا جاتا ہے، جوتا چرائی کہا جاتا ہے. آواز کھینچ رہا ہے مائک. جو اصل کام ہوتا ہے شادی میں نکاح کا، نکاح پڑھانے والے قاضی کو، مولوی کو جب نذرانہ دینے کی بات آتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ 500 روپیہ. اس سے زیادہ نہیں نکلے گا. جی ہاں، شریعت کہاں ایسے مانگنے کا حق ہی نہیں ہے. بتاؤ اب جو قوم نکاح کے لیے 500 روپیہ دے اور جوتا چرانے کا 5000 دے تو بتاؤ اس قوم میں عالم پیدا ہوگا کہ چور پیدا ہوگا؟ اس قوم میں کیا پیدا ہوگا؟ چور بےمان ہی تو پیدا ہوں گے. جب جوتا چرانے پہ آپ بڑھاوا دے رہے ہو، 55,000 روپے دے رہے ہو، اور جو نبی کی سنت اثر ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں آپ مولوی کو 500 روپیہ دے کے ترکہ دے دیتے. اور اگر مولوی بولتا کہتے نہیں مانگنے کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جو دے دیا جائے خوشی سے لے لیا جائے. جبکہ میرے پیر و مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے. فتاوی تاج الشریعہ میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کنواری لڑکی ہے اس کے نکاح پڑھانے کی اجرت کیا ہے؟ نکاح پڑھانے کا نذرانہ کتنا بتایا آپ نے؟ 24,000 روپے. علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے سمجھ سکتے ہیں. 24,000 روپے ایک کنواری لڑکی کی نکاح پڑھانے کا نذرانہ ہے. اور اگر وہ طلاق شدہ ہے تو اس کی آدھی رقم یعنی کہ 12,000 روپے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں. اب یہ تو مولویوں کی شرافت ہے کہ مانگتے نہیں منہ کھول کر کے، یہ شرافت ہے مولوی کو. لیکن جب کہ خود سوچنا چاہیے لوگوں کو. آج ہمارے
कौम में। अब बताओ वो कौम कहाँ से समझ सकती है, जब जिस कौम के वलमा सिर्फ जो है बात वलमा, मैं सबको नहीं कहूंगा, जिस कौम के बात वलमा सिर्फ चापलूसी में आ जाए, सिर्फ पैसे के लिए काम करे, तो वो कौम कहाँ से समझ सकती है। जिस कौम के शोरा सिर्फ पैसे के लिए नाच पड़े, वो कौम कहाँ से समझ सकती है। और जिस कौम की, जिस नबी की उम्मत, जो कौम सिर्फ गुमराही की तरफ बढ़ती जाएगी, तो बताओ वो कहाँ से समझ सकती है, कभी नहीं समझ सकती। वलमा इकराम अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे, लेकिन माहौल बात ये हो गया कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी मिंबर से ऐलान किया था, हाफिज यूनुस साहब की तशरीफ फरमा है, ये गवाह भी है कि हमने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बातें फिरकों के लिए हमारा मिशन चल रहा है और कामयाबी भी मिलेगी। अल्लाह का फजल है कि 50% कामयाबी मिल चुकी है, 50% कामयाबी मिल चुकी है। वलमा गवाह है, आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के आइम्मा हज़रात, मैं सबको कहता हूँ, ये सबकी जिम्मेदारी है कि बातें कुव्वतों के लिए आवाज बुलंद करें, एकजुट हो जाए, एक होकर के अहले सुन्नत वल जमात तक परचम लहराए। ये वही जमात है, ये कोई नई जमात नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जो जमात चली आई वही जमात है। अहले सुन्नत वल जमात ये सवाद आज़म है, और यही वो जमात है कि इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी। ये फिरका नहीं है बल्कि जमात है। आज बात लोग इस पर भी सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ये रफल यादैन क्यों नहीं किया जाता। हमारे वलमा तशरीफ फरमाए तो समझ लीजिए रफल यादैन, अरे भाई हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सोचिए ये तीनों इमामों के भी इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा जो है, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, ये तीनों इमामों के भी इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा। और शाफई मसलक में भी रफ़े दैन का हुक्म है, ये इमाम शाफई की का फरमान है। लेकिन इमाम शाफई जब इमाम आज़म अबू हनीफा के रोज़े पे जाते हैं और जब नमाज वहाँ अदा करते हैं तो रफ़ुल यदैन नहीं करते। और फिर जब आपके मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर आप तो कहते हैं रफ़ुल यदैन होना चाहिए, लेकिन आप इमाम आज़म के रोज़े पे हाजिरी दिए और जब नमाज पढ़े तो रफ़ुल यदैन आपने क्यों छोड़ दिया, तो आप क्या फरमाते हैं, इमाम शाफई फरमाते हैं, ये जो है इमाम शाफई फरमाते हैं कि ये जो इमामों का इमाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरी गैरत को गवाह नहीं कि मैं इनकी तहकीक के आगे अपनी तहकीक को आगे बढ़ाऊं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा की शान है। इमाम शाफई जो कहते हैं रफ़ुल यदैन होना चाहिए, लेकिन जब इमाम आज़म के रोज़े पे गए तो आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक ये मंसूख है, इस वजह से हम रफ़ुल यदैन नहीं करते। हज़रत मौला अली मशहूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, बाद सहाबा ने देखा कि आपने शुरू में सिर्फ अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों तक ले गए और फिर पूरी नमाज मुकम्मल कर ली, लेकिन एक बार भी अपने रफ़ुल यदैन नहीं की। आज हमारे नौजवान वीडियो में बाद ऐसे जो है झोला छाप मौलवियों की वीडियो देख करके गुमराह हो रहे हैं और फिर आकर के उलमा से बहस करते हैं कि रफ़ुल यदैन क्यों नहीं करते, गौसे आज़म करते हैं। अरे भाई गौसे आज़म का जो मसलक है वो हम्बली मसलक से, हम्बली मसलक में होता है रफ़ुल यदैन, हमारे इमाम के नज़दीक मनसूख है तो हम कैसे करें। पहले ये सब बारीक मसले हैं, मौला ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। उलमा की फ़हरिस्त लंबी है, मैं चंद लम्हे के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ। मौला ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। एक आखिरी छोटा सा वाक़या बयान करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। अभी ऐसे हज़रत महबूब इलाही का जिक्र कर दिया। आज ऐसे बात लोग कह देते हैं कि मिलाद नबी से मिलता क्या है। अरे मिलाद नबी से हमें ज़िंदगी जीने का तरीका मिलता है, मिलाद नबी से हमें हमारे घर की बच्चियों को पर्दे का तरीका मिलता है, मिलाद नबी से हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सबक मिलता है। क्या नहीं मिलता मिलाद नबी से। आज जो कुछ है दुनिया में सब कुछ मिलाद नबी का ही तो सदका है। और जाकर के पूछो हजरत अमीर खुसरो से, अमीर खुसरो कौन है, हजरत महबूब इलाही के गुलाम है, मुरीद है। और फिर एक बार महबूब इलाही ने क्या कहा, अमीर खुसरो तुम चले जाया करो पानीपत कलंदरी के पास, अली शाह कलंदरी के पास, वहाँ जुमेरात को महफिल लगाई जाती है। हजरत अमीर खुसरो पहुंचे तो फिर हजरत अली शाह तशरीफ फरमा थे, महफिल लगी हुई थी, वहाँ पे गुफ्तगू हुई और फिर हजरत
अबू अली शाह कलंदर ने हजरत अमीर खुसरो के सर पे हाथ रखा तो फिर वो नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। और फिर जब वो हाथ लगाया तो सब लोग वहीं जहाँ बैठे तो वहाँ अपने आप को उन्होंने पाया। तो फिर हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरो से कहा, अमीर खुसरो तुम किसके मुरीद हो? कहते हैं महबूब इलाही के। कहा नबी के महफिल में वो तो नजर नहीं आए, ये औलिया की शान है, औलिया की शान है, जागती हुई आंखों से नबी का दीदार करते हैं, नबी के महफिल में हाजिर होते हैं। अब जब अमीर खुसरो ने ये बात सुनी तो रंजीदा हो गए। कहा हमने अपने पीर को नहीं पाया। उसके बाद वापस आए और महबूब इलाही से कहा, हुजूर मैं नबी की बारगाह में गया था मगर आपका दीदार नहीं हुआ, आप कहाँ थे? मैं तो शर्मिंदा हो गया, आप बहुत उदास रहते थे। तो महबूब इलाही ने सवाल के जवाब दिया। उसके बाद फिर जो है महबूब इलाही ने कहा, ठीक है अमीर खुसरो अब की जाना तो जा करके फिर वहां सरकार से पूछ लेना। महबूब इलाही फिर दूसरे जुमरात को जब गए, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हाथ रखा, नबी की बारगाह में सबके सब हाजिर हो गए। अब अमीर खुसरो अपने पीर को तलाश करने लगे, महबूब इलाही कहाँ है? अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह करम फरमाए मेरे पीर मुर्शिद कहाँ है? अब आका की शान देखो। आज लोग कहते हैं कि तुम इंडिया में चिल्लाते हो क्या आका मदीने में सुनते हैं? अरे आका की शान तो ये है कि आका हर जगह जलवागर है, ये मेरे नबी की शान है कि हर जगह जलवागर है। वो जब चाहे जहाँ चाहे जो है हाजिर हो सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें हुकूमत अता फरमाई है। तो पता ये चला कि आका ने फरमाया, ऐ अमीर खुसरो इसके ऊपर एक मंजिल और है, वहां जाकर के देख लो। अमीर खुसरो दूसरी मंजिल पे गए तो आका तशरीफ फरमा थे। अब देखिए मेरे नबी की शान कि पहली मंजिल पे भी नबी तशरीफ फरमा, जब दूसरी मंजिल पे गए वहां भी नबी तशरीफ फरमा। फिर अमीर खुसरो ने कहा, हुजूर मेरे पीर, कहा एक और मंजिल है उस पे चले जाओ। फिर उस मंजिल पे गए तो रसूल करीम तशरीफ फरमा, लेकिन पीर मुर्शिद ना मिले। फिर आका ने फरमाया इससे ऊपर एक और मंजिल है उस पे चले जाओ। ऐसे करीब 7 मंजिल पे जब पहुंचे अमीर खुसरो, अब पहली मंजिल से लेके 7वीं मंजिल तक हर जगह अल्लाह के रसूल का जलवा अमीर खुसरो ने देखा। क्या शान है मेरे मुस्तफा की कि हर जगह नबी का जलवा अमीर खुसरो ने देखा। उसके बाद पीर और मुर्शिद ना मिले तो फिर कहा, हुजूर कहाँ मेरे पीर और मुर्शिद? तो 2 ऐसे औलिया किराम जिन्हें महबूब कहा गया, एक महबूब सुबहानी गौसे आजम और दूसरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। तो फिर नबी करीम 7वीं मंजिल पे तशरीफ फरमा, दाएं जानिब गौसे आजम, बाएं जानिब गरीब नवाज और सामने जो बैठा वो महबूब इलाही। और चेहरे पे नकाब, जब नकाब हटाया तो उन्होंने देखा फौरन दीवाने हो गए, रक्स करने लगे। उस पे अमीर खुसरो ने बाकायदा एक नज़म लिखी है, नमी दानम के मंजिल बोध शब जाए के मनबूदम, नमी दानम के मंजिल बोध शब जाए के मनबूदम, बाहर सो रक्से बिस्मिल बोध शब जाए के मनबूदम। क्या शान मेरे आका की, क्या कहते मेरे खुसरो? नहीं मालूम वो कौन सी मंजिल थी, कौन सा मकाम था कल रात जहां मैं था, कि हर तरफ रक्स हो रहा था कल रात जहां मैं था। ये शान मेरे मुस्तफा की है कि शब जाए के मनबूदम, लोग पता ही नहीं पाते। ये शान मेरे मुस्तफा की है। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए, आज लोग जो कह देते हैं नबी हर जगह माज़अल्लाह कैसे आ सकते हैं। अरे भाई मौत का फरिश्ता एक ही है, लेकिन एक वक्त में कई लाख लोगों की रूहें कब्ज़ करता है। तो जब फरिश्ते की ये शान है तो फिर मुस्तफा की शान क्या होगी? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज रबी आलम है तो मुख्तार का आलम होगा क्या होगा? और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिस्र फारस नज्म के फिर एक रातें जाएंगे, खाक हो जाए अतो जलकर मगर हम तो रहा दम में जब तक दम है जिक्र उनका मिलाते जाएंगे। वाह दामना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।